伝統を重んじる人たちのためからとして長谷川さんを非常に、インドの伝統文化を紹介していただいて、本当に心から、魂の底からありがとうと思っております。そしてこれからもずっと長谷川先生のために、努力をしていきたいと思います。हमारे देश की विलुप्त होती जा रही चित्रकला मधुबनी को जिस तरह से आपने प्रश्रय दिया है, जिस तरह से आपने विश्व से परिचित कराया है, वह भी हमारे लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। マドバリの昔から古代から伝わっているマドバリの絵について尽力していただき、これは本当に私たちとしては最高のご尽力であるとすごく感謝しております。जापान में मैथिली म्यूजियम की स्थापना निसंदेह विश्व की एक बड़ी घटना है। बताइए फिर। बोलिए। जापान में मैथिली म्यूजियम की स्थापना निसंदेह विश्व में एक बड़ी घटना है। 日本の国にミティラ美術館というものを設立していただいたということは、世界にとっても非常に大きな貢献であると思います。एक तरह से देखा जाए तो मधुबनी चित्रकला हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है और इसकी चिंता हमारे यहाँ किसी को नहीं है। इसलिए बहुत अद्भुत लगता है कि जापान में बैठे हुए मिस्टर हासेगावा हमारी चित्रकला को लेकर इतने दुखी हैं, इतने व्यग्र हैं, इतने बेचैन हैं कि वे उसे संग्रह करके वहां रखते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी घटना मानता हूं इसको मैं। まずインドの中でさえマドバニ絵画というものに対しては徐々に消えかけているというか、すごく影響が少なくなっている中で、日本という中でミティラ美術館というものをしっかりと伝承していただいて、これは本当に素晴らしく驚くべき事態です。भारत की विलुप्त होती जा रही इस चित्रकला को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और भारत और जापान के बीच जो संस्कृति और कला का पुल निर्मित कर रहे हैं, इसके लिए मिस्टर हासेगावा बधाई के पात्र हैं और पद्म भूषण उन्हें भारत सरकार की ओर से प्राप्त होना ही चाहिए। まずインドでさえその継承が難しくなっている文化のマドバニミティラ絵画を日本でしっかりと守っていただいているということは、これからの私たちとしては長谷川さんはパドマンブーシャンを受け取っていただく十分な値打ちがあると皆が信じております。मिस्टर हासेगावा को पद्म भूषण मिलने से भारत के कला प्रेमियों को, संस्कृति प्रेमियों को बेहद खुशी होगी। 長谷川さんがもしパドマブーシャンを受賞することができれば、インドのこのアートを継続している、あるいはこれをずっと継続している文化人にとっても非常に素晴らしい業績であると信じております。Thank you, sir. ありがとうございます。Thank you, Anupam sir and Yuka-san. Thank you very much for interpreting his views. बात वहां तक खोल के ये खुशी की बात है। नहीं, उनका तो बहुत कठिन शब्द है ना। हाँ, प्रोफेशनल लेवल का है
तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। छोटा छोटा वाक्य बोलना चाहिए था। हाँ, तो सरल वाक्य, थोड़ा हाँ जी जी जी। छोटा छोटा वाक्य बोलना है। हाँ। ध्यान Now I request Hasegawa Sensei to speak. はい、次は長谷川先生にお話しいただきます。Yeah, namaste. So, my Mitra Museum. So, why coming? If I explain so long time, but already my friend made some sentence. So already on your Facebook, so you can read. So almost you understand. But so I can say it's a very why Mitra Museum in Japan, especially 4-meter snow area coming. So it's like we are living the Earth planet, one planet. So sometimes foreign star coming and spark. So like that, only so very few many situation is coming and it was born. I suppose not only one reason. So, but one importance is I am 14th generation of Tokyo downtown. That means 170 years back, we are samurai. And then the more 14th generation. So I was I got so many influence from that culture. So, but 170 years back, samurai cannot continue because, like your country, big from Western technology and then the capitalism and so many coming. And then so around Japan, almost like a colony or colony countries. So we are very gradually understand outside. So then we could successfully open the country anyway. Then there are many Western people is coming, and so then we started first time to eat beef also, beef and pigs. So before we had influence from Buddhism. So we are one Buddhism, following people. So people eating, modern people eating like that. So Tokyo downtown people run away. Very difficult to see. But gradually, so many fast change it. So we are successful, not colony, but for Edo period culture people, like a cultural colony, Japan. Of course, good Western things,
good Eastern things, good Middle East things, good from African cultures. We must getting and learning. But it was very quickly to follow Western culture, because otherwise we became to be colony. At that time, such a thinking way. So for that reason, I have sadness. This Japan culture, something good, of course, but so many for me not so good things. And then for historical, Edo period we had ukiyo-e block painting, very famous, but it was going. And Picasso also influenced from ukiyo-e. Gauguin also influenced ukiyo-e. So modernized Western painting influenced by ukiyo-e, but our own culture, but our new officer doesn't care, because most important is to following how to get strong, weapon and such a things, because necessary. So culture is very, very low situation. Now Japan, about before second economic country or third country now. But even if we have a budget, but we cannot buy back such a painting. So we cannot make a national museum of ukiyo-e in Japan. Small things we can do, but such things. So about that, I know. About that, I feel, something sadness, emotion, with emotions. So for that reason, when I felt Ganga Devi is like a Picasso, I recognize, and also Pupurjakar also recognize. When I said, Ganga, don't you think Ganga Devi is Picasso? She said, thinking, and same energy painter. Yeah. Oh, thank you. Same opinion. But several people also following, but a little bit weak. So now, before I'm going to die, I want to Ganga Devi to bring up for the world in Asian like a Picasso situation. Okay. So in that case, we cannot sell sold. We better to keep. So for that reason, if such another good artist like Godawari Datta-san, such a paint, if I kept 1 year, 2 years, so after 20 years, 30 years, in future, it will be very important things, I thought, at that time. So, this great art is not only for Bihar or Madhubani. This is in the world, not India. It's a world, worthy. This. World Heritage So, kind of thing. yeah, if I speak, then the 24 hours, so I'll stop. Anything, any
question or something that you want to reconfirm or from him? Okay, so let me tell the summary, a little bit summary of Hasegawa Sensei. Yes, please. Okay, in Hindi it would be better. तो हासेगावा जी ने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक तो पहले उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं टोक्यो से दूर एक बर्फ से ढके हुए म्यूजियम में वो उस म्यूजियम को चलाते हैं, जो निगाता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और मुझे अभी याद आया कि उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, यानी जापान शाकाहार की परंपरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। फिर उन्होंने अपने म्यूजियम के बारे में बताया और आखिर में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने गंगा देवी की उन्होंने चर्चा की, और गोदावरी जी हमारे बीच हैं, उनसे भी हम सुनेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। तो गंगा देवी जी की चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये केवल भारत की नहीं है, बल्कि विश्व की धरोहर है, पूरी दुनिया की और पिकासो के साथ भी की गंगा देवी, पिकासो के साथ। और एक यूकियो नाम की एक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग होती है जो ब्लॉक पर रखकर पेंट की जाती है। यूकियोए ऐसी पेंटिंग है। तो वो पेंटिंग आपको इस पर फेसबुक वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। एक ब्लॉक पेंटिंग है, ब्लॉक से पेंट किया जाता है और बहुत खूबसूरत चित्र उसके उभर के आते हैं। मैंने तो बहुत सारी देखी, म्यूजियम में जाके देखी, और ट्विटर पे बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं, वो भी देखता हूँ। तो एडो पीरियड जो अब से पहले का है, मतलब ये 1867-68 से पहले का जो पीरियड है जापान में, उसे एडो पीरियड कहते हैं। उस समय जो है ये पेंटिंग काफी प्रचलित थी। तो हासेगावा जी ने वही बताया कि उस तरह की पेंटिंग है, उसका कोई अभी खास म्यूजियम जापान में भी नहीं है। तो उसी तरह से मधुबनी पेंटिंग का प्रचार यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन हासेगावा जी ने उसे जापान में सुरक्षित किया, उसे प्रमोट किया है। युका-सान, डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? यस, हिंदी में हिंदी ठीक है। हाँ, ठीक। ऐसा है, मोटा मोटी आप एकदम मैंने जो हासेगावा जी जो बताए हैं वो आप सब जैसे ही है आप बताए हैं, ठीक है। वो चाहते हैं वो पूरी दुनिया जो है almost it was colonized, पूरा दुनिया colonized, like India was also colonized by England. So those Western cultures है, forcibly they have taken all the countries, all the देश को सब, पूरा दुनिया का देश को कब्जा किए। जापान कब्जा नहीं हुए, they can culturally वो वेस्टर्न कल्चर उन लोगों को कोलोनाइज किया है जापान। जो उकियो-ए was all taken by Western those माने people, and then Japan जो है, जापानीज लोग जो है, वो लोगों ने देश को एकदम बंद कर दिए थे, जैसा लॉकआउट हुआ कोरोना में, कोविड में, इस तरह से जापान भी लॉकआउट हुए थे, लॉकआउट किए थे, सो दैट वो कोलोनाइजेशन नहीं हो, कब्जा नहीं हो। They can by
कल्चर मैंने वो लोग ने सब जैसा बीफ और पोर्क खाने लगे, नॉन वेज आइटम्स। पहले जापान में तो नहीं खाते थे, जैसा जो इंडियन के हिंदू लोग नहीं खाते, इस तरह से जापान में भी नहीं खाते थे। लेकिन दो यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो है, बाहर के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है, अब वो लोगों ने वो लोग का कल्चर को कब्जा किया। बट ही फील्स, वो सोचते हैं, जैसा गंगा देवी है, गंगा देवी जी है, वो उनका जो जो काम है, आर्ट है, वो तो पिकासो से बराबर बराबर है। वो चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, डिफिकल्ट है, लेकिन वो विश्वास करते हैं उनका जो कला है, गोदावरी जी के कला है, वो तो इतना ही बराबर है जैसा पिकासो इज प्रेस्ड। मैंने सब लोग को उसका बहुत बड़ी आर्ट है करके समझते हैं, लेकिन वो विश्वास करते हैं गंगा देवी जी, गोदावरी जी का पेंटिंग है, इतना ही बराबर वो विश्वास करते हैं। थैंक यू युका सान। दो युका जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जो हासेगावा जी ने कही थी। एक तो कि जापान जो है बंद देश था और भारत की तरह उस पर अंग्रेजों का या किसी दूसरी ताकत का जो कॉलोनियल ताकतें थी उनका कोई कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा कि लेकिन कल्चर के रास्ते से उन्होंने जापान को काफी प्रभावित कर लिया है और इसलिए पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व, यानी भारत में तो उसकी डेस्टिनी थी कि वो लोग आते और कब्जा कर लेते, लेकिन जापान जैसे देश में भी कल्चर के रास्ते उन्होंने वेस्टर्नाइज किया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो गंगा देवी जैसी पेंटर हैं, जिनकी पेंटिंग पिकासो की जैसी ही है, उसके समकक्ष ही है, तो उसका जो है प्रचार प्रसार दुनिया में नहीं हो पाया। या उसकी पिकासो की हम बड़ी चर्चा सुनते हैं, लेकिन उसमें गंगा देवी जैसी पेंटर जो है वो अदृश्य रह जाती है, उनकी कोई चर्चा नहीं हो पाती, ऐसा हासेगावा जी कह रहे थे जी। थैंक यू युका सान। गोदावरी जी, आप बोलेंगी कुछ? गोदावरी सान, माइक ऑन। माइक्रो उनका माइक्रोफोन हाँ, माइक ऑन। गोदावरी जी, माइक ऑन। माइक ऑन नहीं हो रहा है। कोई असिस्टेंट थे ना उनका? हाँ हाँ, शायद वो माइक बंद किया हुआ है। हमारे ख्याल से वो नहीं जानते हैं वो कैसे स्विच ऑन करे माइक्रोफोन। हाँ हाँ उनका कोई हेल्प होना चाहिए। हाँ, वो शायद पूछ रही हैं, हाँ, किसी से हेल्प ले रही।
うまく安永さんは参加できてるの？नहीं जुड़ पा うん नहीं जुड़ पा 誰か男の子みたいな子がいたらいいんだけどね。 Till then गोदावरी ओके माइक ऑन कीजिए शायद पीछे कोई उनके आया है शायद उससे नहीं होगा। नहीं हो रहा है इसको ऑन करना होगा चलो तो for time being we can request Yamamoto-san to say something if he likes to speak. He is most welcome. Yamamoto-san.山本さん聞こえてるかな？あ、マイクが。ちょっと待ってね。あ、ここに、こちらからもなんかできるんですよ。はい、聞こえますか？あ、聞こえます。今までね、ゴダワリさんの場合もマイクをつけることができるんですよ、こっちから。後で。はい。山本さんお願いします。はい。長谷川さんのしゃべる。日本語で喋りますか？ゆかさん。はいはい。長谷川さんの応援団の一人で山本です。One of them बहुत important supporters for 長谷川जी。Hello。こんにちは。ちょっとどうしようかな。ゴダワリさんを先した方がいいんじゃない？そうですね。Yamamoto-san, let us first listen to Godavari Datta-san, then you can speak. 山本さん、少しだけお待ちいただけますか？今、ゴダワリさんのマイクが開通しましたので、彼女が話しているので、少しだけ後にお願いします。はい、OK。गोदावरी जी बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग बुलाए हैं और आप लोगों से मिल करके हम 7 बार जापान हासेगावाजी ले गए और 6-6 महीना वहां पर मैं काम किए कलाकृति का। जैसे अपने परिवार के लोग रहते हैं, परिवार के साथ मिल करके, वैसे ही हासेगावाजी हम लोगों को रखे, फैमिली समझ करके। हासेगावाजी को हम लोग ये जानते हैं कि देश तो दूसरा है, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य है, ऐसे जानते हैं। हमारा कला का जो इतना आदर किया कि इतना उसको बढ़ावा दिया, दुनिया भर में फैलाए, इसके लिए हम बहुत आभारी है और धन्यवाद देते हैं जापान हासेगावाजी को, उसको फैमिली को और उसके जितने भी कार्यकर्ता लोग थी, वो सभी हम लोगों के साथ इतना घुल मिल करके हम लोगों का सहयोग किया। हम लोग को ये अनुभव नहीं हुआ कि हम दूसरे देश में रह रहे हैं। 1 मिनट हासेगावा जी को बताते हैं जो आप बताए अभी तक। हासेगावा जी को थोड़ा बताते हैं। जी बताइए। 今この
この会議に呼んでいただいて、すごく、ものすごく感謝しています。長谷川さんは私たちを呼んでくださって、6ヶ月以上も彼の場所に滞在させてくださって、家族同様、長谷川さんのご家族も皆さんが私たちを本当に家族のように扱ってくださって、本当に感謝しています。また私たちの絵画のことを世界中に広めようとしてくださって、その努力は本当に尊敬に値すべきものです。बताइए जी। जी, सबसे इम्पोर्टेंट था, एक तो मिथिला पेंटिंग को फ्री हैंड हम लोग बनाते हैं कैसे, वो वहां दिखवाए। और हासेवा जी हम लोगों को फैमिली के जैसे फैमिली में लोग रहते हैं वैसे हम लोगों को रखे। तो और तीसरी बात है कि एम्बेसी से हम लोगों को मिला करके रखे हमेशा, कि हम लोग निर्भीक होकर वहां रहे, किसी चीज का डर नहीं था, कि कोई शंका नहीं था कि हम कैसे अकेले रहेंगे। 長谷川さんのとこにいることができて、家族と同様にしていただいて、何事も不自由な不足するものはありませんでした。और हम सभी कलाकार को जरा सा भी कोई तकलीफ हुई, कोई बुखार लग गया या कहीं पर कोई तकलीफ है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाते थे। もし私たちが描き手の誰かが少しでも熱が出たり病気になったりするとすぐに病院にも連れて行ってくれた。हम लोग जो थोड़ा घर का याद आ जाती है, यहाँ का इंडिया का बच्चों का, तो हम लोग बहुत मायूस हो जाती। वो इसका अनुभव करके हम लोग को हंसाते थे कि हाँ हंसाते थे, और बीच में बैठ करके ऐसे ही बात करते थे। 私たちがホームシックになりかけるときとか、子供たちに会いたいとか、そういう気持ちになったときでも、いつでも陽気に冗談を話したりして、私たちが元気になるようにしてくれました。मैं अत्यंत खुशी हूँ इसलिए कि पहले मैं जापान जाने के लिए तैयार नहीं थी। हम बहुत परेशान किया हासेवा जी को, एक बार तो फिरा दिया, हम कहे नहीं हम नहीं जाएंगे। 初めは日本に行くことはあまり、行くことをあまり望んでませんでした。だけど、何度か呼ばれて行くことを決意しました。लेकिन हासेवा जी नहीं माने, वो बहुत आग्रह किया कि आप नहीं चलिएगा तो हमारा मिथिला म्यूजियम कंप्लीट नहीं होगा। あなたに来てもらわないとミティーラ美術館が完成しないと何度も言われました。तो आखिरकार मैं तैयार हुई और यूकानियम कलकत्ता में थी, तो यूकानियम के सहयोग से हम लोग फिर जापान पहुंचे। 私たちも最後に、決心してユカニガムさんの助けによってカルカッタから日本に行くことができました。माने हम लोगों के माध्यम में यूकानियम थी, वो भी अपना फैमिली के जैसा हम लोगों को कलकत्ता में रखती थी और अप डाउन कराती थी हमेशा। いつでも
ビハールの方に往復できるようにニガムさんは助けてくれました。जापान जाके हम लोग वहाँ का भी कल्चर देखे, वहाँ का कल्चर का अध्ययन किया। पूरा जापान में गली गली घूम करके वे लोग 2 महीना 4 महीना करके हम लोग को डिमोन्स्ट्रेशन कराए कि फ्री हैंड काम कैसे होता है। 日本では初めていろんなところに連れて行ってもらって、展示会に出席して、その場所で絵を描きました。ये सब उनका जो भावना है कला के प्रति, हमारे जो कला है उसके प्रति जो उनका भावना है उसको देख करके हम चकित रह गए कि उसको बारीकी से देखने का मौका दिया लोगों को। और हमारा कला जो है, जो हमारा इंडिया में तो हम लोग बनाती थी, लेकिन डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ का लोग आकर के देखते थे, वो सारे दुनिया को दिखा दिए वहां पर। 日本で、みんなが私たちが描いて描いているところを本当に細かく見るような、みんなが見れるような機会を皆さんに与えてくれて、そして世界に紹介してくれるようにしました。हम लोग कभी अनुभव नहीं किए कि हम दूसरे देश में हैं, और हमको ऐसा लगा कि वास्तव में आदमी तो है पूरे विश्व भर में, लेकिन हर देश का आदमी जब इस तरह का भावना रखे तो हर एक देश के आदमी एक परिवार जैसे मिल करके रह सकते हैं और कहीं जा आ सकते हैं। जेंट्स नहीं था हम लोगों के साथ में, नहीं ले जाते थे, सिर्फ हम लोग औरत जाती थी। तो पुरुष लोगों को हमारा फैमिली को सभी को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि कैसे ये लोग रहती थी वहां पर में, किस तरह से रखे हैं हासेगावाजी। तो इसलिए हम पटना में जो मिले थे, आए थे हासेगावाजी, तो हम भारत सरकार से आग्रह किए थे, अनुरोध किए थे कि हासेगावाजी को, हम लोगों को, कलाकारों को जो ला करके जापान ले जा करके जो हम लोग हमारा कला का जो एक विस्तार किया है, जो इज्जत दिया है, उसके लिए इनको पद्म भूषण मिलना चाहिए। मैंने वहां पर मैं आग्रह किया था। 長谷川さんがパトナに来られた時に、私はインドの政府の関係者に、長谷川さんこそパドマブーシャンを受け取るべき人だとお願いしました。और इसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब हासेगावाजी के मिलेगा, सिलेक्शन होगा और हमको इसके लिए सूचना मिलेगी और हम खुशी मनाएंगे। そのために、マドバニの絵を非常に高いレベルまで上げてもらって、それを今なんとか長谷川さんがパドマブーシャン賞を受け取ってもらえることを心から待ち望んでいます。इसके लिए जो आप लोगों को जो विचार होगा, हमको जो कुछ भी यहाँ पढ़ने करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कहीं, तो हम बोल सकते हैं। もしそのために私がどこかに出向いてそのことを話す必要があるなら、私はどこでも行くつもりです。मैंने जो बनाई वहां पर में त्रिशूल, 18 फुट का त्रिशूल और डमरू, मेरा पेंटिंग जो उतना बड़ा था, अपना घर में रह करके, इंडिया में रह करके मैं नहीं बना सकती थी।
もし、長谷川さんのところで作った、हाँ 18フィートのダムルとか、トリシュールなどを、もし、インドの家で作れと言われても、とてもできなかったと思います。 तो इसलिए हमको उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं その और 度 हम に本当にあり बहुत がとうと、 हाँ ありがとうございました。 हाँ हम खुश हैं हम लोगों के साथ जैसा अच्छा व्यवहार किया कि हमको शिकायत का कोई मौका नहीं मिला कभी 私が、 गोदावरी 長谷川さんのところで、滞在し創作活動ができたことに関して、何一つ文句を言うことは何もありません。本当に良かったです。 आप लोगों से मिल करके यहाँ पर में इसका जो चर्चा हुआ है उसका मिथिला मिथिला म्यूजियम जो नाम पड़ा जो विश्व भर में सभी जानते हैं उसका नाम मिथिला म्यूजियम पड़ गया तो इसलिए ये बहुत ही हमारे गौरव की बात है कि दूसरे देश में हमारा मिथिला म्यूजियम खड़ा हुआ जापान जैसे देश में ミティ बहुत ラ बड़ी 美 गौरव 術館の名前は世界中に知られており、私たちマドバニの描きアーティストたちにとっては本当に誇りに思えることです。 आप लोग कहिए कुछ बोलिए जी 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 धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया और मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ हैं वो हासेगावा जी की आव भगत और उनकी हॉस्पिटैलिटी को समझ पाए होंगे और जिस तरह का संसाधन उन्होंने वहाँ वो किया, जैसे गोदावरी जी बता रही थी कि यहाँ रहकर उस तरह की पेंटिंग जो डमरू और त्रिशूल की पेंटिंग उन्होंने बताया, यहाँ रहकर वो संभव नहीं था बनाना, लेकिन नहीं हाँ हम घर में रह करके नहीं बना सकती थी। हाँ घर में रहकर भी बना सकती थी, उसे हासेगावा जी ने वो किया। तो यामामोतो सान इज नॉट हियर। 山本さんはどこに来ましたでしょうか。 पहले तो हम जाने के लिए तैयार नहीं थी कि हम नहीं जाएंगे। जब वहां से इस तरह का इम्पोर्टेंट चित्र बना करके आई तो हमको लगा कि हमारा जो उपलब्धि जो हुआ है हमारा लाइफ में बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ वहां जापान जा करके। 日本に行ったことは私にとって本当に素晴らしく向上させてくれた大きな経験です。山本さんはどこですかね。山本さんどこ行きました。もう帰りました。いや、そんなことないですけど。ओके, तो प्रवीण, トイレかな。हाँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार इज हियर. Yes. He is a professor of Hindi in Delhi University. He is very big story writer, very famous story writer, and he is ここにプラビン教授がおられますが、彼はデリー大学のヒンディー語の教授で、素晴らしい作家でもあります。तो प्रवीण जी बोलिए, आप बताएं। सबसे पहले मैं हासेगावा साहब को नमस्कार करता हूं और मैं हिंदी में ही बोलूं सर। हाँ, हिंदी में बोलिए और बीच में रुकिएगा तो और धीरे धीरे बोलिए जिससे युका जी को समझ में आए और सरल हिंदी में बोलिए, है ना, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं जी जी। तो उस तरह से। और
फिर यूका जी हासेगावा जी के लिए उसका ट्रांसलेशन जापानी में करेंगे। राइट। सबसे पहले तो मैं इस विचार का स्वागत करता हूं कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच में संस्कृति पुरुष है और आजाद कला के विचार को लेकर वो केवल भारत और जापान के ही रिश्तों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक संस्कृति पुरुष के माध्यम से आजादी वाले कलाओं का, उनकी अभिव्यक्ति को का स्पेस बना रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। आजादी वाली माने आजादी वाले स्वतंत्र कलाओं के लिए, स्वतंत्र beyond capitalist thought, the independent culture and arts. He is promoting independent culture and art. And Madhubani painting. I am also from Bihar, and Madhubani is no. ビハールからのものですが、このように独立した文化、芸術を大変を推進してくださっていることを本当に感謝しております。As a teacher, as a assistant professor in Delhi University, whatever we can do, we will do our best to promote his name for Padma Bhushan. 次喋ってほしいらしいんだけど、用意してたね。राम प्रकाश सर, あ、そ इतना ही कहना था। शुक्रिया। う。はいはい。長谷川さん、はいプラビン・クマール先生がデリーの教授ですが、私の方からどのようなことでも長谷川さんをこの賞に推薦することに私は努力をいたします。ありがとうございます。And Praveen Kumar San is also from Bihar. 彼はビハールでです。So now we have Adarsh जी, सुन रहे हैं क्या? बोलना चाहते हैं?山本さんは今用意してんだって。今彼が山本さん is Yamamoto san is getting ready, no? He is doing a makeup or something. तो मेकअप कर रहे हैं यामामोतो जी को अभी थोड़ी देर में. connectionが little bit problem, so he tried to again. Just wait. Right now connection problem है. अच्छा. Line. So he is trying to come back. तो अयानो जी भी शायद उसमें. जीतेश्वरी जी, धन्यवाद, आप बाद में कीजिएगा. अभी उससे पहले जीतेश्वरी भी बहुत अच्छी लेखिका है और समय समय पर पुस्तक समीक्षा वगैरह, पुस्तक समीक्षा, बुक रिव्यू जीतेश्वरी का वो होता है. और ये हमारी पत्रिका में असिस्टेंट एडिटर थी, पर एक तकनीकी कारणों से अभी कुछ दिनों के लिए इनका नाम जो है थोड़ा सा हटाया गया है और बाद में जुड़ा जाएगा. तो 彼は私たちが出している編集長ものの発行書の編集長でもあります。だから非常に私たちにとって一番に紹介したい人です。ジテシュアリさん、一番初めにお話しした方。नमस्ते, मैं जितेश्वरी. हासेगावा जी को मैं प्रणाम करती हूँ. 彼女がジテシュアリさんで、今話している発行者の編集長のお仕事をされてます。
द्विवेदी सर के माध्यम से हासेगावा जी को जानना हुआ। मैं तो पहले जानती नहीं थी और जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को, मधुबनी को जापान में भी इस तरह से बहुत विस्तारित किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। 今までよく知らなかったんですけれども、今回いろいろと紹介していただき、本当に素晴らしい活動を日本でしていただいて、マドバニの絵のために貢献していただき、感謝をしております。भारत के आदर्श हैं हमारे हासेगावा जी, मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगी आज में। 私はインドの国のものとして、長谷川さんにありがとうとナマステを言いたいと思います。今日はこれだけで。Yamamoto-san is back after his makeup. He is written kawaii. Kawaii is very popular word in Japanese. Yes, So, right. kawaii. 山本さんは化粧直しをしてこられたから、今とても可愛いです。So now I request Yamamoto-san to speak. はい。では山本さんにお話ししていただきます。はいはい。ゆかさん、翻訳をお願いしますね。はいはい。さっきちょっと言いましたけど、長谷川さんの応援団の一人です。それで、さっきहम हासेगावा जी को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग ग्रुप का वन ऑफ द लीडर है。長谷川さんはさっき浮世絵の話を浮世絵の話をもっぱらされたので、ちょっとそれの他のミティラー美術館と長谷川さんについての浮世絵以外の話をちょっとしたいと思います。Actually, already उकियो का बात तो हो गए हैं, मिथिला म्यूजियम का बात भी हो गए हैं, हो चुके हैं। इसलिए हम थोड़ा दूसरा बात करना चाहते हैं उनके बारे में。はい。長谷川さんの世界を理解する上でですね、大池十日町の山の中でのそのエコロジカルな暮らしとその窓場にミティラー画の出会い、その関係っていうのがすごく大事だと思っています。हम सोचते हैं जो व्यक्ति जो ओइके टोकामाची सिटी जापान के बहुत जंगल की तरह एकदम इलाका में रहते हैं और इकोलॉजिकल लिविंग करते हैं, और वही आदमी और मिथिला मधुबनी पेंटिंग कैसा ज्वाइन हुआ है, उसी के लिए हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। そのミティラ美術館、長谷川さんがミティラ美術マドバニ絵画と出会ってミティラ美術館を始めるまでにというかもともとですからその前衛音楽家として70年代の初めに世界の旅をして、それから日本に戻ってきて東京なんかには住めないやということで十日町の山の中に住み着くということがあって、それからミティラ画と出会ってミティラ美術館を始めるまでに何年ですかね、結構時間があったわけですね。何年ぐらいですか？10年ぐらい。10年。ですからその10年ぐらいの間、要するにそのミティラ画に出会うまでの何かこう助走期間みたいなもの、その期間っていうのがどうもなかなか重要なんじゃないかっていうふうに思っています。वो जैसा जो पहले वो तो म्यूजिशियन थे, तो दूसरे दुनिया भी ट्रैवल करके वो उन लोग का म्यूजिक प्रेजेंट करते थे
तो आफ्टर कमिंग बैक टू जापान वापस आने के बाद वो टोक्यो में वो रहना नहीं चाहते थे और वो एकदम रिमोट प्लेस में चले गए। तो बिफोर स्टार्टिंग मिथिला म्यूजियम 10 साल का टाइम एकदम 10 साल माने चले गए 10 साल। उसी 10 साल के बारे में हम बात करना चाहते हैं। それで一つはですからその期間の出来事の大事なことの一つとして何かあそこの大池のその地域のそのリゾート開発計画、つまりそこの地域に何かリゾート施設を建てようという計画が出てきて、それに対してその全くその新参のよそ者だった若者の長谷川さんがその計画に対して反対をしてですね、そのいろいろやり取りがあってその結果計画がストップする実現しなかったっていう経緯、そういうことがあって今のミティラ美術館の環境っていうのが守られたっていうことがまず一つの大事な出来事として。उसी 10 साल के अंदर में वही जगह जो हसगावा जी ने घर चेंज किए थे, तो वही जगह में जा करके उसी समय वो सिटी की तरफ से बहुत बड़ा योजना हो गए थे। वही जगह को एकदम रिजोर्ट प्लेस में चेंज करना, माने डेवलप करें उसी जगह को रिजोर्ट प्लेस करके। वो बहुत ओपोज माने उसी का आइडिया में ओपोजिंग किया, उसके सिटी के साथ में बहुत लड़ाई किए हैं और आखिर में वो जगह मिल गए हैं और उसका डेवलपमेंट योजना जो है वो खत्म हो गए। 長谷川さんがですからそれからもう一つはそういう東京暮らしだった若者がそういうその自然の中で生活を始めてなんかおっかなびっくりっていうんですかね、生活を始めてだんだんそのいろんな動物と出会ったりなんか自分なりのそのエコロジカルな暮らしを作っていくわけですけど、その中でもベジタリアンになったっていうのはやっぱり一つのそういういろんな動物との出会いを通じてベジタリアンになった。後でその長谷川先生の経緯をちょっと話していただくといいと思うんですけど、そういうそのいろんな出会いを通じてベジタリアンになったっていうことが一つの大変象徴的な意味があることかなと思います。दूसरा जो है वो एकदम अकेला वहीं पे a person of बड़ा सिटी के लड़का यंग टाइम में वो एकदम फॉरेस्ट एरिया में चले गए। वो भी बहुत बड़ा चीज है, लेकिन उसी समय वो बहुत नेचुरल एनिमल वगैरह के साथ मुलाकात करके उसके बाद वो वेजिटेरियन होने का डिसीजन किया है। वो भी बहुत बड़ा चीज है। それからもう一つの最近私も知ったんですけれども、そのミティラ美術館ミティラ型kann wir. いいですか？はい、いいです。いいですか？はい。最近私も知ったんですけれども、その時期ミティラ画とまだ出会う前の時期にですね、長谷川さんが
物語、絵と物語、物語というか詩のような物語、宇宙の森の物語っていう、発行部数がほとんど何冊かというようなものを書かれていて、それの中身を最近私も初めて読ませていただいたんです。それを読んでですね思ったんですけども、その話いろんなこの非常にナイーブな長谷川さんの感性っていうのが表現されている作品なんですけれども、それを読んで非常に驚いたと思ったのは、その時点ではまだそのミティラーが海外のことを知らなかったわけですけども、その作品っていうのはほとんどそういうミティラーを予感しているみたいなね、そういう世界なんですね。उसी पीरियड में उन्होंने किताब लिखे हैं विद पेंटिंग। वो किताब लिखे हैं समथिंग लाइक पोएम टाइप, पोएम कम पेंटिंग कम स्टोरी। तो उस पीरियड में जैसा जो उन्होंने ऐसा चीज बनाए हैं, तो हमको ऐसा लगा है उसका कुछ anticipating कैसा the meeting with Madhubani painting was anticipated from writing such kind of book, I felt. でその物語というのがそういう森での暮らしの中で感じた長谷川さんの世界っていうのを表現したものがそういうその宇宙の森の物語っていうものになっているわけなんですけども、そういうものがそういうそのミティラー画を予感するようなものであるっていうのはすごく大事なことで、つまりउसका長谷川जी के सेंसिटिविटी जो है to write this kind of book and story and poem and then picture, those kind of things जो है उनका कुछ प्रेडिक्शन जैसा होता है, जैसा उनका मिराकत मधुबनी पेंटिंग्स का दुनिया से मिराकत हो, इस तरह का प्रेडिक्शन हमको लगा है। ということでですね、長谷川さんのエコロジカルな暮らしというのとそのミティラー画っていうのがそういうだからミティラー画との出会いはあるかなり偶然的なものなんだと思うんですけれども、そういう今お話したようなことで考えてみるとその長谷川さんのエコロジカルな暮らしとそのミティラー画の出会いっていうのは偶然でありながらその必然だったっていうことがですね分かるんですね。それが長谷川さんの世界を考える上で理解するわけで大変大事なことなだと思っています。हमको लगता है माने उनका इकोलॉजिकल काइंड ऑफ लिविंग, इकोलॉजिकल लाइफ, फिर उनका सेंसिटिविटी, all these things together was the karmatic kind of result को नतीजा को पैदा किया है मिथिला पेंटिंग के साथ। 以上です。That's all. Thank you. それだけですか。はい。終わり。ありがとうございます。So, thank you very much, Yamamoto-san. You spoke very well and इसमें जैसा कि यूका जी ने बताया कि वो जंगल की तरफ गए, तो हमारे भारत में तो वानप्रस्थ की परंपरा रही है
और वहाँ जाकर उन्होंने एक नई शुरुआत की मिथिला पेंटिंग को बचाने की। आर्ट मतलब कला, साहित्य, संगीत की दुनिया से जुड़ने के लिए उन्होंने टोक्यो शहर छोड़ दिया और फिर वो दूर चले गए। तो बहुत अच्छा लगा। और वो हमारी तरह वेजिटेरियन नहीं है, वो शायद पनीर और दूध जैसी चीजों का भी सेवन नहीं करते हैं, तो जिसे हाँ वेगन कहा जाता है अंग्रेजी में। वेगन तरह के वेजिटेरियन हैं। तो लेकिन शराब पीते हैं। शराब जो है वो शुद्ध शाकाहारी शराब की संस्कृति जापान में उसकी उसमें बहुत गहरी, जैसे हम लोग देसी घी खाते हैं उस तरह से शराब का मसला है। ओ अच्छा तो जापान में रहते हुए ऐसा तो इसलिए आप अगर उन्हें शाकाहारी मान रहे हैं तो उसमें से शराब जो है वो हटा देना है। हमारे यहाँ शाकाहारी में शराब हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। हाँ, भारत में अगर कहा जाए ये शाकाहारी हैं तो इसका मतलब ये भी होगा कि ये शराब भी नहीं पीते होंगे। वो शराब भी शाकाहारी मैंने शराब भी नहीं पीते हैं। हाँ, ज्यादातर ऐसा माना जाता है। 本当はシャカハリっていうのは、菜食主義っていうのは、本当は酒も飲まないんですけれども、インドでは。それを菜食主義と呼ぶんですけれども、長谷川さんは、インドでは、ギヒっていうデシギ、バターなんですけれども、それは酒のように使います。そういうふうに思っていただくといいです。तो हम लोग सभी लोग कोशिश करेंगे और तमाम तरह के अधिकारियों से भी बात करेंगे। प्रवीण जी हमारे बीच में हैं और वो भी बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं। आदर्श जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आदर्श कुमार, और वो स्टार न्यूज के साथ पहले जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग भी जुड़े हैं और कुछ एक अधिकारियों से भी बात करेंगे। और हासेगावा जी के लिए इस बार हम लोग जरूर काम करेंगे कि उन्हें पद्म भूषण मिले। 今、アダシ・クマールさんという人の名前を言われたんですけれども、彼はマスコミでは非常に以前スターテレビジョンというところで仕事をしていましたし、マスコミ関係と非常に力強い関わりと政府関係の人たちと強いコネを持っていますので、彼もこれから努力していきます。और अब लास्ट में जीतेश्वरी जी फाइनल आप सबका, यूका जी का, यामामोतो जी का, गोदावरी जी का, हासेगावा जी का, प्रवीण और आदर्श, अयानो जी हैं और एनपीओ जापान का एक जुड़ा है। इन सबका धन्यवाद जीतेश्वरी जी करेंगी। तो それではジテシュアリさんから皆さんにご挨拶をして、皆さんに感謝の念を述べて終わりたいと思いますけれども、What about उनका गजल? वो तो एकदम रेडी थे गजल गाने का। गजल गाने का गाजी का गजल के बाद फिर धन्यवाद। गजल के बाद फिर या गजल से समाप्ति करें। 長谷川さん、ガザルを先にしますか、それともジテシュアリさんの挨拶の前にしますか、どちらがいいですか。 After Jiteshwari Shan, Hasegawa Sensei will sing
and if he wants to say anything else, he is free to speak. OK。それでは、まず、自邸しありさんからご挨拶、皆さんにご挨拶していただいて、そして最後に長谷川さんの歌で締める。そして、その他に長谷川さんが何かおっしゃりたければ、それをご挨拶していただいて、ということに、で、今回のミート会議を終わりたいと思います。ग्लोबल कल्चर्स के तत्वाधान में आयोजित आज की यह चर्चा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण चर्चा सिद्ध हुई है। 私たちのグローバルカルチャー、私たちのグローバルカルチャーの私たちのソサエティのとしては、今回このような機会を皆さんと持てたことを心から感謝します。मिस्टर तोक्यो हासेगावा के निर्देशन में निसंदेह आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं मिस्टर हासेगावा, आरपी द्विवेदी सर, रमेश अनुपम जी, मोहितो गोदावरी सबकी अत्यंत आभारी हूँ। 長谷川さんのことを紹介していただき、お会いでき、またゴダワリダッタさんとものお話も聞けてお会いでき、非常に、ありがたく感謝しております。मिस्टर तोक्यो हासेगावा के निर्देशन में निसंदेह हमारी यह यात्रा निरंतर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होगी। 長谷川जी के हासेगावा के निर्देशन में our journey will reach some good destination. 私たちのこれからの旅は必ず成功のを得ることができると信じております。So she was saying that under guidance of Mr. Hasegawa, 長谷川さんに導かれて私たちは成功を収めることができると信じております。आज आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर 皆さんの非常に貴重な時間を費やしていただいたことを感謝いたします。 इस चर्चा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। このように、皆さんにお会いでき、そしてお話を聞けて感謝できることを私の最も重要な仕事であると信じております。 आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। それでは हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। それでは魂の底から皆さんに本当にありがとうございました。 Now Hasegawa Sensei will sing the ghazal, and if he wants to say anything, he is free to speak. それでは長谷川さんのガザルを歌っていただいて、他にもし誰かお話ししたい方がおられましたらどうぞ。あるいは長谷川さんも。स्वागत है। タリね、ヤシ酒、皆さんは飲まないですか？タリ PJ。タリ PJ？ タリहै ना तारी? नो नो तारी करके एक तो शराब है ना इंडिया में, लोकल लिका तो वो बोलते हैं तारी कीजिए।
私は少しお酒飲まないと歌えないので、さっきから準備してほら。वो बोले हैं जब तक वो नहीं पिएंगे हम नहीं गा सकते हैं। हाँ, इसलिए उनका सामने थोड़ा सा शराब रखा है। तो शराब के साथ जो है, जैसे महफिल पुराने समय में जमती थी, हासे गावा जी ने शराब का एक पहला पैग लगा लिया है और अब वो आपके सामने पेश करते हैं। もう少し飲まないとうまく歌えないんだけど。長谷川さん、インドでも、こういうなんていうのかな、お酒の席みたいなのが昔からずっとありましたから。ウムラオジャンみたいな。ガザールね。では、拍手がないですかね。مكارف किसी और का मुझे सोचता कोई और है क्या बात मक्यारुफ किसी और का मुझे सोचता कोई और है सारे आईना मेरा अक्स है सारे आईना मेरा अक्स है कोई और है का मैं ख्याल किसी और का मुझे सोचता कोई और है What is the meaning? What he has sung? What is उसका मतलब क्या है? मैं सोचता कुछ और हूँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, ऐसे है। अनुपम सर बताएंगे। अनुपम सर भी शायर हैं। प्रोफेसर अनुपम is also poet and he along with Hindi he also knows Urdu as well. अच्छा अच्छा। मैं ख्याल हूँ किसी और का, ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं किसी दूसरे का विचार हूँ, मुझे कोई दूसरा सोचता है। ये मतलब कुछ चीजों का तो अर्थ भी बताना बहुत कठिन होता है, इसको फील किया जा सकता है। この意味を教えてくださいって言ったんですけど、このヒンディーのとかウルドゥーとかの表示なんですけれども、その意味っていうのをすごく説明するのは難しい。तो प्रवीण जी जो हैं वो भी उर्दू जानते हैं और उर्दू में लिखते हैं। प्रवीण जी माइक और कैमरा ऑन कीजिए। जी सर, स्वागत। ये हिंदी, he is professor of Hindi but he also writes in Urdu as well. तो इन्होंने सही वो दिया है। बताइए इसका अर्थ बताइए युका जी को। I have just written this on message box that meaning मतलब I am idea of someone but another one is thinking about me. I am idea of someone but some other person is thinking about me.
An idea means विचार, thought, thought. thought, हाँ, ought. हाँ. 長谷川さん、わかります意味。いやいや、わかんない。 ये बहुत मध्यम गति पे गाया जाने वाला गजल है. I see. このね、あものすごく深いので、これを説明しろって言っても、なかなか難しいんです。I think Yuka-san, はい that I am in someone's mind. Okay. It means if someone is loving me, はあ、 that love is not two-sided, but another person is in between. So it is reflecting a love triangle. 私は誰かの、जिसे रकीब कहते हैं राम सर. हाँ हाँ. रकीब जो बीच में आ जाता है. और रकीब है। तो प्यार किसी और से करते हैं, लेकिन चाहता कोई और है. क्या बात है. Loving someone, but someone else is loving you. You are loving one person. 私は誰かのことをすごく思っているんだけども、でも他の人があなたのことを、その人は他の人のことをすごく思っています。なんか、one way love kind. One way. Yes, yes. 一方通行の恋みたいなものを歌ってます。So, this is the world. So, the This is world, one meaning. dunia There may be many more meanings. Huh? This is one meaning. Huh. There may be more meanings. これが一つの言い方なんですけれども、インドっていうのはやっぱり思想的に神様とかそういうものだから、非常に深い意味があるんです。है ना? इंडिया में बहुत डीप फिलोसफी है ना, इसलिए हो सकता है भगवान के ऊपर में भी हो सकता है। सूफी फिलोसफी से वो सूफी फिलोसफी ना। I see。これはスーフィーの思想を元にしている歌だから、この人間と人間じゃなくて宇宙と自分だとか、そういうスーフィー思想のものですから、説明するのはなかなか難しいです。I see。So, Adarsh और वंदना, they are also from Bihar. We have 2-3 minutes. अगर आदर्श कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। हाँ, आदर्शさんがちょっと彼もビハールの方なんですけど。Vandana is also journalist. She social media journalist. Vandana san is social media. それからバンダナさんはソーシャルメディアの。And they live very near to Mithila. ジャーナリストで2人ともミティラの近くの方です。आदर्श बताइए। Yes, I actually belong to Sitamarhi, and Sitamarhi is the place where Ma Sita was born. Ma Sita is the wife Ma Sita was the wife of Lord Rama. So yeah. 私は下までのものです。Yeah, Sitamarhi. Sitamarhi is situated in Bihar. And it is. सीतामढ़ी हम गए थे, हसगा जी भी गए हैं, वहीं पे आदर्श है।
Yeah. シータマディねと有名な、シータマディっていうところには有名な画家がいますよね、長谷川さん。もう行ったでしょ、シータマディ。Yeah, yeah, yeah. It is it is near Nepal, and it is very sacred place and equally important as Ayodhya. ネパールの近くで、アヨッディアの近くでもあります。तो हासेगावा जी भी सीतामढ़ी गए थे, योका जी भी गए थे। तो अगली बार आदर्श के साथ आप लोग मिलिए जब सीतामढ़ी जाइए तो। वंदना जी बताइए। वंदना जी सुन रही है क्या? नहीं। अच्छा, तो एक मिनट। हाँ, Am I audible? Yes. So, how many places you all have been there? Have you seen Delhi places? कौन हसगा जी? In Delhi. हासेगावा जी कहाँ गए थे? कितनी जगह पर भी? 長谷川さんはどこどこ行きましたか？インドですか？ビハール。ビハール。ビハール？हाँ, बिहार में। ブッダガヤとか、パトナ、あと、マドマニは、インマドマニ、ラシットプール、ランティは、こだわりだったリビング、ランティ、and ジトワールプール。Okay. And have you visited Uttar Pradesh, UP? I think no. Ma'am? No? Lucknow only little bit. लखनऊ। Okay, Lucknow गए थे. So I think you like. Have you visited the Taj Mahal? ताज महल। ताज महल वा? That is the place. Only one time I visit after maybe 30 times India visit. Because I'm interested in like Buddha Gaya, but not so interested in Buddha Gaya. I'm going to Hazaribagh. Okay. Like that mountainside, like Mizoram, border of Myanmar, and Arunachal Pradesh. Oh, very good. And Manipur. Very good. Tripura. Okay. And south in India, like Kerala and because he was calling this Katakari. Okay. Tricur. Okay. Means you have more visited to South India. You visited what part of South India? Yeah, Bangalore also little bit. Okay. But so, I like to be here. And how many places you like the most in India? India? Yes. Which place you like the most? The most, yes. Which is your favorite? Which is your favorite place? Which you will advise to your friends that they should go to that particular places only? Yeah. Which you like the most? Yes, because I feel I'm interested in, not human beings culture.
Okay. Most like I last night with this dog. 3 o'clock midnight. This dog want to go to toilet. Inside the house, no toilet for dog. So I'll go outside several times. 2 o'clock, 1 o'clock midnight also. But 3 o'clock nights, the moon was just here. So this moon, not half, but this moon lighting roof of this house. So something lighting roof little bit very beautiful color by moonlight. So I felt, when I was in house, I forgot to see the moon through roof. So about such an importance, always this dog going to toilet, then I'll open a little bit simple door, and I will go outside. So this life is very important for me. Always I'm with Chandrama. Okay. वंदना कह रहे हैं कि ज्यादा ह्यूमन कम्युनिकेशन में हम नहीं रहते। अच्छा। ये जो कुत्ता है ना, छोटा सा, पहले बड़ा था, बड़ा वाला कुत्ता था, वो उसका देहांत हो गया। क्योंकि वो उसके बाद ये छोटा कुत्ता भी हासेगावा जी के पास है। और 2-3 बार मैं इसके साथ बाहर रात में निकलता हूँ टॉयलेट वगैरह के लिए। और घर में रहते हुए चांद को देखना पसंद है, इसलिए भारत भी जब जाते हैं तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाते, जो पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने बहुत बताया कि त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, ऐसे तमाम जगहों पर वो ज्यादा जाते हैं। और मणिपुर के बहुत सारे लोग जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो उनके संपर्क में है। और मणिपुर का जो ट्रूप है, कई बार 15-15, 20-20 लोग जो है वो आते हैं हासेगावा जी के पास, और उस तरह के वो फिर मणिपुरी नृत्य वगैरह और इस तरह का आयोजन वो लगातार करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दे शुड गो टू देयर प्लेसेस, मतलब उन जगहों पर जाना चाहिए। Because my ancestors from Uttar Pradesh, so it is my suggestion for them that there are many places which should be, visited. So this is my Vandana San is offering next time when Hasegawa Sensei will come to India, she will accompany him to definitely some historical places. 彼女はウッタルプラデーシュの人ですので、ウッタルプラデーシュにも必ず行ってほしい。素晴らしいところがたくさんあります。そしてラームさんが、あなたが彼がウッタルプラデーシュに来たときは必ず案内してくださいということです。タリを用意してください。タリ。नहीं, शराब ताड़ी को तैयार करके रखिए। अरे बोल लेती हैं। One important thing because like Godavari-san, late Karupuri-san, late Mahasundari-san, when they were in Japan, so some special ritual day, full moon, Chandrama, praying time, but if raining day, but they try to see Chandrama
overlay and play. So this is very important for me because Chandrama always coming. So Mitra painter always try to, contact cosmology, the world, not the world, the whole universe. So this culture very important for me. Okay. एक्चुअली उनका थिंकिंग जो है वो फ्रॉम द टोटल यूनिवर्स वो देखना चाहते हैं, जैसा अच्छा जैसा आदमी लोग ह्यूमन बींग्स अपने तरफ का अपना कॉम्बिनेशन से बनाना चाहते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते हैं नेचुरल environment from universe idea. वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, कहाँ से सीखा आपने इतनी अच्छी हिंदी बोलना? हम तो वो इंडिया के इंडियंस के साथ शादी हुए हैं। ओके, तभी आपका कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है? फिर भी हमारा प्रोनाउंसिएशन में बहुत मिस्टेक होते हैं, तो हर समय वो लोग बहुत भी नहीं हो रहा है, हंसते रहते हैं, नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अयस्त है, अयस्त लोग बहुत जमेला वाला है। हाँ। अभी आप लोग जो है वो उर्दू वो लोग तो कास्ट ज्यादा ही वो मुस्लिम लोग का वो करते थे ना, हमेशा अकाउंट मैनेज करते थे। या नो दे इन मुस्लिम के साथ में बहुत करीब रहते थे पहले 300 साल। उन लोग का आइडिया में दोनों ही मिक्स है। ओके, वेरी स्मार्ट। ब्राह्मण लोग उसी करीब में नहीं है, ब्राह्मण लोग, क्योंकि मेरा मिस्टर द्विवेदी तो एकदम बहुत बड़ा ब्राह्मण है ना। हम जानते हैं। पर मैं ताको वासा भी खाता हूँ, ताको वासाबी एंड ताको। आप खाते हैं? खाया, जापान में खाया। समझ में नहीं आया होगा इसलिए खाए होंगे। नहीं, अच्छा लगता है। मैं तो उल्टी किए होंगे। नहीं, उल्टी नहीं किया। हा? और हमागुरी भी खाया। खाए हैं? हाँ, हमागुरी भी खाया, याकिनिकुड़ी भी खाया। तो अब मैं ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं रहा। ओह, अच्छा। तो निगम लोग भी एकदम नहीं है ना, क्योंकि हाँ उनका तो ज्यादा ही माने देखिए, हम जानते हैं वो लोग बहुत स्मार्ट है, एकदम जापानी लड़की को फंसाने का बहुत अच्छा से जानता है। हमको तो इतना झूठ बोला। हाँ, वो विक्टोरिया मेमोरियल है ना कलकत्ता का, वो हमको दिखाया था, ये मेरा घर है। हाँ, तो आदर्श तो ज्यादा झूठ नहीं बोल पाए होंगे फिर। यहाँ भी लड़कियों को फंसाने के लिए लड़के झूठ बोलते हैं। हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ा झूठ बोलने वाले हैं, बोलने वाले। तो एक बार कानपुर गए थे। अच्छा। कानपुर से है ना इन लोग का ओरिजिनल। अच्छा। तो कानपुर गए थे, तो वो पहले हमको बोला, देखो शहर का लोग सब लोग हम लोग को जानते हैं, इतना मशहूर है हम लोग, तो हम भी सबको जानते हैं कानपुर में।
तो हम पूछा था, तो यहीं पे आप जो सबको जानते हैं, तो सामने वाला जो आते हैं एकदम ब्रोकात आया था, ब्रोकात। तो हम बोला ये लोग का नाम भी जानते हैं, इसका गाय और भैंस का नाम जानते हैं? बोला हाँ जानते हैं। तो हमारा क्या है? तो वो बोला एक तो हीरा है, दूसरा मोती है। बैल का नाम बता दिया, हीरा और मोती। हाँ, और हम विश्वास कर दिया। हाँ। हम सोचा अरे बाबा, ये हर भैंस का बैल का भी नाम जानते हैं। ऐसा। और एक बार वो जापान में वो चोट लग गया, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ कुछ निशानी है। तो हम पूछा था ये क्या चीज है, इतना बड़ा निशान कैसे हुआ, कुछ एक्सीडेंट हो गया? तो बोला हाँ, हम अपना सादा स्पोर्ट्स का चलाते थे इंडिया में। तो उसमें एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, जब हम लोग का शादी हुए, हमारा मदर इन लॉ से पूछा सादा वाला स्पोर्ट्स का कहाँ है? तो बोला कौन सा? तो वो बोला उसका वो एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे चोट लग गया बोला। तो वो बोला कौन सा? वो तो बचपन में साइकिल से गिर गए थे। इतना बड़ा कहानी, झूठ बोलने वाले। तो खैर आप फंस गई तो अच्छा है, भारत को फायदा होगा। और नहीं, हम ए टू जेड भारत के बारे में जानते हैं, इसलिए हम जापान में एक तो कंसल्टेंट शुरू करेंगे यहाँ पे। जी जी। इंडिया SOS। हाँ। कंपनी का नाम है इंडिया SOS। अच्छा, इंडिया SOS। जैसा इंडिया का कोई प्रॉब्लम है, कोई झमेला है, हमको बताइए, हम सब कुछ हेल्प करेगा। जी जी, है ना? तो फिर इसे बंद करें अब। はい、それではもうこれで終わりにいたしますか？はいはい。長谷川さんも何もないですか？いや、まあ、ゆかさんの話が長かったから大丈夫です。いっぺん話し出すと止まらないです。うちのね、かやしたっていうか、結婚したファミリーのこととか話してたんです。はい。これで今日はいいんじゃないですかね、今日は。あ、じゃあ、どう？長谷川さんから一言皆さんに感謝するとかなんかどうですか？ここにお集まりいただいて。まあ、今日は、そして会えて大変嬉しかったです。हम सबसे मिलकर के बहुत खुश है। まあ、特にゴダワリさんが顔を見れて元気そうなのでとても嬉しかったです。गोदावरी जी का भी से भी मुलाकात हुए, उनका भी बहुत अच्छा सेहत में रखते हैं और बहुत खुश है देख के। まあできればもう少しそのビハールのこの絵画になんかこう、サポートというかもうちょっともっとこのまだまだ世界で知られてないので私のこの残してきたコレクションというのをやはりその世界の大きなところでこう見せてあげたり、まあもっとこのインドのフォークアートはミティラからこう火がついてワルリガになったり、ワルリガも始まったり、ゴンドガが始まったり、まだニラマニデビのようなインパールのまあ投稿、皆さんこう年取ったり、まあ、病気だったり亡くなった人が多いんですけど、次の世代、次のインドのメイクドインディア
この新しい、文化を作るときに、このゴダワリさんやガンガデビさんが、こう、努力して、海外に行って、長い時間をかけて作ったものは、本当に大事なもので、それらをこう、みんながもっとこう、触れたり見れるように、できるといいなと思ってるんですけどね。そういう意味で、そういうこうインドの素晴らしい賞をいただいたりすれば、少しはね、もっとこういろんな人に、私の考えがこう伝わりやすくなるかなと思うので、大変皆さんがパドマ・ブーシャン賞というのをなんかもらえるようになんか気持ちをお持ちだっていうのは大変嬉しかったです。हम बहुत खुश है जैसा सब लोग सब मैंने बहुत कोशिश करने में तैयार है जैसा हमको पद्मा भूषण प्राइज अवार्ड मिले, क्योंकि हम एक्चुअली इन फ्यूचर मेरा थिंकिंग है these treasures of Indian art and culture जैसा मधुबनी पेंटिंग है, वारली पेंटिंग है, and then so many important art and cultures should be more should be presented in an exhibition so that everybody can see and then recognize about this culture in the whole world. And अगर हमको ये अवार्ड मिलेगा बहुत हेल्प हो जाएगा फॉर द फर्दर स्टेप अप, इसलिए हम बहुत खुश है, सब लोग कोशिश करने में तैयार है, हम बहुत खुश है. Thank you very much everyone. So now we are closing the meeting and द्विवेदी सर कन्वे द मैसेज कि मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा और उनके विचारों को सुनकर कि वो भारतीय संस्कृति को इतना आगे ले जाना चाह रही हैं, तो ये बात आप उन तक पहुंचाएं, ये अनुरोध है आपसे. हाँ बिल्कुल. वो और हासेगावा सेंसेई इज मोर एक्टिव ऑन फेसबुक. आई एम नॉट. I am not very much active on social media. Sometimes I write on Twitter. लेकिन आप लोग चाहें तो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और वो बहुत अच्छी सुंदर फोटोग्राफ्स म्यूजियम के भी डालते हैं और अपने भी डालते हैं. और वो छोटा सा भी कुत्ता आपने देखा उसके साथ की और वीडियो भी डालते हैं, तो उससे जुड़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है. Yuka-san, thank you. Thank you very much. And Yamamoto-san, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hasegawa sensei, arigatou gozaimashita. Sayonara. 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 सभी को नमस्कार और धन्यवाद. नमस्कार, धन्यवाद. नमस्कार. पता नहीं चला. थोड़ा बुआ रहा था लेकिन हम लोग अंधेरा आ रहा था. गाड़ी चला के तो ठीक है ना. いいですかね、終わって。消していいですか。ご苦労様でした。आपको देख भी सकते हैं. हम ही लोग का नहीं हो रहा था. क्या ऑफ हो गया, हो गया. वो देख भी सकते हैं बाद में अपन. क्या पता है. अच्छा रहा, चलो तो नहीं बहुत अच्छा बना. ऐसा मैं तो डर के मेरा गड़बड़ा के था कि नहीं अच्छा हो गया. नहीं, एक ही चीज को ना एक बार बस डबल बोल पाए आप बस. वो ऐसे होता है. मैं थोड़ा उसमें तालमेल नहीं कर पा रहा था. मैं इसमें अब ये हमारी शूटिंग एक सेकंड उनवाद में एकदम शुरू में आ गया ना. मैं एकदम थोड़ा मैं
पकड़ नहीं पाया। भोजन का क्या होगा? भोजन नहीं होगा। यही बनने वाला जो चल रहा था लोग का। पापा फोन कर दे पहले भोजन का कुछ करो, फिर पापा को फोन करो। उतना नहीं हो रहा है। अब ऑफ हुआ जाके दादा। बाप रे कितना मुश्किल हो गया था जुड़ना ना, जुड़े लेकिन ले लेके वो तो मैं ना भैया बताने से पहले ही मेरा उसमें आ गया था जुड़ने का। अरे बाप रे क्या चीज, हे भगवान कैसे मुझे लग रहा है पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। जल तो गया है, स्मेल आ रही है। कहाँ ब्लैक हुआ यार? बाप रे इतना गंदा वॉशरूम है आपका। लेकिन क्या स्मेल आ रही क्या? नहीं आ रही है स्मेल। लेकिन जल गया है क्या बाहर से? एकदम कौन काला सा पड़ गया। जगह? काला था अरे ही दादा रे। पूरा देखो ना कैसे काला हो गया। पता नहीं, रुको एक सेकंड में लाइट ऑन कर। फिर कोई बना के देखो ना इसको। दादा ये देखो तो पूरा जल गया लग रहा है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ लग रहा है, पहले से ही था क्या? पहले से काला है क्या? हाँ देखो तो। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। चलो जैसे दिखा देंगे। लेकिन ये मैं कह रही हूँ इतने गंदे में कैसे सरवाइव कर लेती हो? इतना गंदा वॉशरूम है बाप रे।